1. Grapple. पकड़ना, जकड़ना, उलझाना, गत्ते जाना, दस्त बदस्त लड़ना, इनकड़ा, गिरफ्त, कांटा. 2. Recession. बेरोजगारी और पैदावारी सतह गिरने से माशी बहरान वापसी. पसरवी, रजत, दस्त बर्दारी इर्तिदाद कसल बाजारी. 3. Revolution. दौरान, गर्दिश, इनकलाब, काया पलट, सियासी इनकलाब. 4. Empire. कलम रूए सल्तनत. 5. Reluctantly. हिचकिचाते हुए, मज़ाहमाना तौर पर, नाज़ामंदी से, मुखालिफाना तौर पर, रुके रुके अंदाज में, बादल नखास्ता. 6. Chronological. मुताद्दिद वाक़यात का इस तरतीब से तरतीब दिया गया जिसमें वो हुआ था. वक्त गुजरने के लिहाज से शुमार किया जाता है. तारीख वार रूनुमा होने की तारीखी तरतीब से दर्ज. तवारीख के मुतालिक. 7. Meander. चक्कर का सफर, पेचीदा, पेचदार रास्ता. चक्कर खाना, घूमना, आवारा गर्दी करना. चक्कर खाते बहना, बेमकसद घूमना, बाकना, भटकना. 8. Leisurely. आहिस्ता, बातमन्नान, बेउजलत. 9. Detour. लंबा रास्ता, फेरदार भेर. चक्कर, नाकाबिल गुजर होने की सूरत में मुतबादिल रास्ते का इस्तेमाल. 10. Brisk. फुर्तीला, तेज, चुस्त और चालाक, चाको चौबंद. होशियार, तेज होना, तेज करना. 1. Unexpected. अचानक, बिल तवक्को, दफ्तन, एकदम, एकाएकी, गैर मुतवक्के, खलफ उम्मीद, नादान, ना वक्त. 2. Deviation. तजावुज, इन्हिराफ, फर्क, सही राह, तरीख से इन्हिराफ, रास्ते की तब्दीली, सही राह से इन्हिराफ. 3. Legacy. जायदाद मतरूका, मीरास, तरका, वक्फ, वसीयत विरसा, माल जो बजरिया वसीयत मिले. कानूनी, शरी, मुताबिक कानून. 4. Exodus. रवानगी, रिहलत, हिजरत, खुरूज, कोच. 5. Arc. कमान, कौस, कमान सूरत कोई चीज, खमदार खत का कोई हिस्सा. Good things. Arifa Noor Dawn Editorial, with Urdu translation. Published on December 13, 2022. For more videos, subscribe. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. The year draws to an end, having passed in what appear to be 12 blinks of the eye. Even though 2022 brought the end of the pandemic, it was not an easy year for many reasons. And more so it seemed in Pakistan than the rest of the world, which also grappled with conflict and recession. But this is not about 2022, for week after week, or day after day, the unpleasantness that was 2022 has been recorded by all of us, in different ways. So just for a bit of a break, I will attempt to turn critic, rather than political commentator, that is just about everyone in Pakistan, though I am among the minority which gets paid for it. And hence, I will attempt to review a podcast, which was truly among the most enjoyable I came across this year. Revolutions is a close second Empire by William Dalrymple and Anita Anand. Beginning with the East India Company and the end of the Mughal rule in the subcontinent, the two have talked,
laughed and even cried their way to 1947 over 20 episodes before reluctantly, for them and more so for their listeners, calling an end to their travels through the subcontinent. But this is not to say the podcast is a chronological account of days past. That would be too simple affair for these two. Empire is more of a meandering, leisurely walk through a historical period, with detours and gentle rests and a pace which can be brisk or slow. There are unexpected day-long picnics and equally surprising deviations, which don't jar because the subject and the discussion are worthwhile. In other words, don't expect a cookie-cutter approach either to the episodes or to the manner in which they proceed. The podcast Empire is a walk through a historical era with detours and a pace that's slow or brisk. When the Queen died, the two stopped regular transmission to do an episode on the legacy of the Empire, the discussion about it at present, the lack of awareness in Britain about it, and the role of the royal family with historian David Olusoga. Not for a moment did it seem out of place. And more than anything else, what stayed in my head was Dalrymple's story, as they discussed the difficulty of talking about history in the present day, of how Olusoga had come for a public talk with bodyguards. Later in the series, the election of Rishi Sunak led to an episode where historian Mahmood Mamdani joins the podcasters to talk about Indian migration to East Africa, Idi Amin, and then the exodus of the South Asians to UK. I suspect the podcast is such a great experience because Anand and Dalrymple are obviously enjoying every moment. The podcast is as much about them as it is about history. The Kohinoor Diamond takes up 4 episodes because the two of them have co-authored a book on it and they have much to say. But to give them credit, the 4 episodes don't seem too long because they know how to spin a tale which spans India, Pakistan, and Afghanistan, along with London and Queen Victoria. And along with their great rapport, the series shines because these two history buffs, with their journalistic background, know the importance of telling a story through characters rather than just narrating the wider arc. Gina and Gandhi get an episode each, with Ramachandra Guha and Aisha Jalal as the guests, and the former allows the podcast to talk about the Muslim community, the Muslim League and partition. Similarly, Udham Singh leads us to the Gadar movement, Jen Dwyer takes us to Jallianwala Bagh, and Ranjit Singh's son and Queen Victoria's relationship turns into an exploration of Punjab, as well as British attitudes towards the empire. Adding to this is Anand's penchant for bringing in quirky folklore or gossip. The moment when she asks Mamdani if Idi Amin's dislike of Indians was due to his having fallen in love with the beautiful wife of an Indian businessman is pure gold. And this is the series' greatest strength as well as its weakness. The focus on people, and interesting people, sometimes prevents the series from delving too deeply into the details of events. For instance, the cabinet mission plan is mentioned at the tail end in the 2 episodes where they have taken questions from the listeners, and this one came from Dalrymple's son. Similarly, there is not much on the later socio-economic changes. But this is nitpicking, for the period is obviously one that is more than just history for this listener from Pakistan. But beyond all else, this podcast is important because every episode more or less underlines how relevant and personal history remains even now. And for this, Anand and Dalrymple are to be appreciated. They never let their listeners forget for a moment that all of this continues to impact our lives even today. I have already mentioned the Olusoga anecdote, highlighting how difficult it is perhaps for some to discuss race and colonialism in Britain. The discussion about the East India Company or the Kohinoor is interspersed with references to the current debate about how museums in the West are filled with artifacts forcibly removed from colonized lands. The episode on Gandhi takes us through the changing debate on the leader of India and how the BJP and in particular the present Prime Minister view and refer to him. It is to their credit that they can weave the past and the present and the personal so effectively. The episode on partition is a case in point. They have now moved on to the Ottoman Empire. And I look forward to it, especially because I wonder if it will be as easy to follow it as the one on the subcontinent was. But so far, I can say that these two raconteurs have met their match in Peter Frankopan. The writer is a journalist. Published in Dawn, December 13, 2022.
For more videos subscribe. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. साल इख्तिताम की तरफ जाता है, जो आंखों के 12 पलकों के तौर पर जाहिर होता है। अगरचे 2022 वबाई मर्ज का खात्मा लेकर आया, लेकिन ये कई वजूहात की बिना पर आसान साल नहीं था। और इससे भी ज्यादा ये पाकिस्तान में बाकी दुनिया के मुकाबले में लग रहा था, जो तनाज़ात और कसाद से भी दो चार था। लेकिन ये 2022 के बारे में नहीं है, हफ्ते के बाद हफ्ते, दिन के बाद दिन के लिए। 2022 में जो नाखुशगवारी थी वो हम सब ने मुख्तलिफ तरीकों से रिकॉर्ड की है। लिहाजा थोड़ी देर के वक्फे के लिए मैं सियासी मुबस्सिर के बजाय नक्काद बनने की कोशिश करूंगा। ये पाकिस्तान में हर किसी के बारे में है, हालांकि मैं इस अक़लियत में शामिल हूं जिसे इसकी कीमत अदा की जाती है। और इस वजह से मैं एक पॉडकास्ट का जायजा लेने की कोशिश करूंगा जो वाकई इस साल मैंने सबसे ज्यादा लुत्फ अंदोज किया था। इनकलाबात एक करीबी, दूसरा है विलियम डैलिम्पल और अनीता आनंद की तरफ से सल्तनत। ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू होने वाली और बैसगीर में मुगल हुक्मरानी के खात्मे से शुरू होने वाली, दोनों ने 1947 में 20 एक साथ से पहले इनके लिए और इससे भी ज्यादा अपने सामीन के लिए बैसगीर के जरिए अपने सफर को खत्म करने का मुतालबा करते हुए बात की है, हंसा है और यहाँ तक के रोना रोया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पॉडकास्ट पिछले दिनों का एक तारीखी अकाउंट है। ये इन दोनों के लिए बहुत आसान किराया होगा। सल्तनत एक घूमने वाली, आरामदेह और पुरसुकून तौर पर एक तारीखी दौर के जरिए चलने वाली है, जिसमें चक्कर और नर्म आराम और एक ऐसी रफ्तार है जो तेज और सुस्त हो सकती है। गैर मुतवक्के दिन भर पिकनिक और इसी तरह हैरत अंगेज इन्हिराफ हैं, जो जार नहीं करते हैं क्योंकि मौजू और बहस काबिल कदर हैं। दूसरे लफ्जों में, एक साथ जिस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, इसके लिए कुकी कट्टर नुक्ता नजर की तवक्को ना करें। पॉडकास्ट एम्पायर एक तारीखी दौर के जरिए घूमने फिरने और एक ऐसी रफ्तार के साथ चलना है जो सुस्ता तेज है। जब मलिका का इंतकाल हुआ तो दोनों ने सल्तनत की मीरास, इस वक्त उसके बारे में बहस, इसके बारे में बरतानिया में बेदारी की कमी और मुअर्रिख डेविड उलूसोगा के साथ शाही खानदान के किरदार पर एक किस्त करने के लिए बाकायदा ट्रांसमिशन को रोक दिया। एक लम्हे के लिए भी यह जगह से बाहर नहीं लग रहा था। और किसी और चीज से ज्यादा जो चीज मेरे जहन में रही वो डैलिम्पल की कहानी थी, क्योंकि उन्होंने मौजूदा दौर में तारीख के बारे में बात करने की दुश्वारी पर तबादला ख्याल किया था कि किस तरह उलूसोगा बॉडीगार्ड्स के साथ अवामी गुफ्तगू के लिए आया था। बाद विच इस सिलसिले विच ऋषि संघ दे इंतखाब ने एक वाकया पेश किया जिथे मुअर्रिख महमूद ममदानी पॉडकास्टरां दे नाल मशरकी अफ्रीका विच हिंदुस्तानी हिजरत, ईदी अमीन ती फैर जनूबी अलिफाशायां दे बरतानिया हिजरत दे बारे विच गुल करने दे लई शामिल हुए। मुझे शुबा है कि पॉडकास्ट इतना अच्छा तजुर्बा है क्योंकि आनंद और डैलिम्पल वाज़े तौर पर हर लम्हे से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। पॉडकास्ट उनके बारे में इतना ही है जितना यह तारीख के बारे में है। को नूर हीरा 4 एक साथ लेता है क्योंकि इन दोनों ने इस पर एक किताब मुश्तरका तौर पर लिखी है और उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन उन्हें क्रेडिट देने के लिए 4 एक साथ बहुत तवील नहीं लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लंदन और मलिका विक्टोरिया के साथ साथ भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई कहानी को किस तरह घुमाना है। और उनके अजीम ताल्लुकात के साथ साथ ये सिलसिला चमकता है क्योंकि ये दो तारीख के शौकीन उनके सहाफती पस मंजर के साथ सिर्फ वसी आर्क बयान करने के बजाय किरदारों के जरिए कहानी बताने की अहमियत को जानते हैं। जिना और गांधी को एक एक किस्त मिलती है, रामचंद्र घा और आयशा जलाल मेहमान के तौर पर, और साबिक पॉडकास्ट को मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम लीग और तकसीम के बारे में बात करने की इजाजत देता है। इसी तरह आदम सिंह हमें गदर तहरीक की तरफ ले जाता है, जनरल डायर हमें जलियांवाला बाग ले जाता है और रंजीत सिंह के बेटे और मलिका विक्टोरिया का रिश्ता पंजाब की खोज के साथ साथ सल्तनत के तई बरतानवी रवैयों में बदल जाता है। इसमें मजीद इजाफा आनंद की अजीब व गरीब लोक कहानियों और गुपशप को लाने का शौक है। वो लम्हा जब वो ममदानी से पूछती है कि क्या ईदी अमीन की हिंदुस्तानियों से नापसंदीदगी इस वजह से थी कि उसे एक हिंदुस्तानी ताजिर की खूबसूरत बीवी से प्यार हो गया था, तो वो खालिस सुना है। और ये सीरीज की सबसे बड़ी ताकत के साथ साथ उसकी कमजोरी भी है। लोगों पर तवज्जो और दिलचस्प लोग बाज औकात सीरीज को वाकयात की तफसीलात में बहुत गहराई से डूबने से रोकता है।
मिसाल के तौर पर काबीना मिशन प्लान का जिक्र 2 एक साथ में दम के आखिर में किया गया है, जहां उन्होंने सामीन से सवालात लिए हैं और ये डील रिम्पल के बेटे की तरफ से आया है। इसी तरह बाद में समाजी और इक्तिसादी तब्दीलियों पर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये एक छोटा सा चुनाव है, क्योंकि ये दौर वाज़े तौर पर एक ऐसा दूर है जो पाकिस्तान के इस सुनने वाले के लिए सिर्फ तारीख से कहीं ज्यादा है। लेकिन बाकी सबसे आगे ये पॉडकास्ट अहम है, क्योंकि हर किस्त कम और बेश इस बात की निशानदेही करती है कि अब भी मुतालिका और ज़ाती तारीख कितनी मुतालिका और ज़ाती तारीख बाकी है, और उसके लिए आनंद और डील रिम्पल की तारीफ की जानी चाहिए। वो अपने सामीन को एक लम्हे के लिए भी ये नहीं भूलने देते हैं कि ये सब आज भी हमारी जिंदगियों पर असरअंदाज होता है। मैं पहले ही उलू सोगा के किस्से का जिक्र कर चुका हूँ, जिसमें इस बात पर रोशनी डाली गई है कि बरतानिया में नस्ल और नौआबादियात पर बात करना शायद कुछ लोगों के लिए कितना मुश्किल है। ईस्ट इंडिया कंपनी या नूर के बारे में होने वाली बहस मौजूदा बहस के हवाले से है कि किस तरह मगरिब के अजायब घरों को नौआबादियाती जमीनों से जबरी तौर पर हटाए गए नवादरात से भरा हुआ है। गांधी पर वाकया हमें हिंदुस्तान के रहनुमा के बारे में बदलती हुई बहस के जरिए ले जाता है, और बीजेपी और ख़ास तौर पर मौजूदा वजीर आज़म उनके बारे में किस तरह देखते हैं और उनका हवाला देते हैं। ये उनके क्रेडिट पर है कि वो माजी और हाल और ज़ाती को इतनी मुअस्सर तरीके से तश्कील दे सकते हैं। तकसीम का वाकया नुक्ता नज़र में एक केस है। अब वो सल्तनत उस्मानिया में मुंतकिल हो चुके हैं, और मैं इसका मुंतज़िर हूँ, ख़ास तौर पर इसलिए कि मुझे हैरत है कि क्या इस पर अमल करना इतना ही आसान होगा जितना बई-सग़ीर में था। लेकिन अब तक मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों रिकोनेट्यूरर्स ने पीटर फ्रेंकूपन में अपने मैच से मुलाकात की है। मज़मून निगार सहाफ़ी हैं। डॉन अखबार में शाये शुदा 13 दिसंबर 2022। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.